Hello, Assalamu alaikum. How is everyone? I hope everybody will be okay, and wherever you are, you will be in a very good state of your health. And today, the topic is very interesting for those who are again and again asking me, tell us about OET, OET, OET. So here we are today. Today we are going to discuss about OET, how you can start preparing for your OET at your home. So that means you're going to start preparation from your home, not going to the coaching center or the training centers. So this will be your level 1. So we will start from the first thing first. But the first thing first, before going to that, I am going to request you that please subscribe my channel and like the videos, share the videos, comment in the comment section box if you have any questions or queries. Do not hesitate by asking, because when you will ask, I will be aware that what you are confused about or what should be my next video topic. So, Assalamu alaikum. How is everyone? I'm good, Alhamdulillah, and hopefully you will also be okay wherever you are. Or welcome back to my channel. Once again, I'm back with another इन्फॉर्मेटिव वीडियो. होपफुली आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद होने वाली है जो लोग मुझे रोज़ाना बोल रहे हैं कि ओईटी मेंटर बन जाओ, ओईटी मेंटर बन जाओ, ओईटी 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 के बारे में हमें बताएं. तो आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने तैयार की है उन लोगों के लिए जो अपने आप को समझते हैं कि लेवल 1 पे हैं या लेवल 0 पे हैं, यानी आई मीन टू से कि वो लोग जो बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं ओईटी की प्रिपरेशन और सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप कैसे लेना चाहिए, हाउ वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग ओईटी एट होम. जो नहीं जाना चाहते एकेडमी में और जो नहीं जाना चाहते कोचिंग सेंटर में, जो कि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि यू शुड नॉट गो टू द अकेडमीज और एनी कोचिंग सेंटर बिफोर असेसिंग योरसेल्फ एट योर होम. When you are planning to start your OET preparation at home, what you have to do in the first place is to find out your level of English. This is the first thing that you have to do at your own level. How now the question is, you will ask me that how we can assess our level of English. So it's not a big deal, it's not a very difficult thing that you are going to do. It's very easy and very simple. I'm going to explain to you how you can do that. So when we talk about assess your level of English, the question is, who is going to assess you? Yes, you are the one who is going to assess yourself at home. From your mobile, from your computer, wherever is your comfortable place, you just sit and assess yourself what is your level of English. And next question is how it's going to help you in preparation of your OET. So it's very 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 helpful. You can say it basically, it's the basic thing that you should know before starting your OET preparation. You will know that which module is the easiest module for you and which module is the difficult one for you. As all of you are aware that OET consists on 4 different modules, that is reading, writing, speaking and listening. It can be different for person to person. For me, the difficult part was listening. For you, might it be the reading. For somebody else, maybe it will be the writing or the speaking. Most of the people, before starting the preparation for OET, they are thinking that speaking is a difficult one part. But trust me, speaking is not the one which is difficult. There could be some other modules that will be difficult for you. It could be writing, listening or reading that are not the easy parts. Obviously everything needs struggle and need consistency and your determination. If you have these things, sure, I am very sure that you can do that इन द फर्स्ट अटैम्प्ट. तो अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि जब आप अपने आप को असेस करेंगे कि आप इंग्लिश के किस लेवल पे हैं, तो उस जगह पे आगे आपको कौन सी 3 चीज़ें पता चलेंगी. आपको ये पता चलेगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं. अब वीक पॉइंट्स से मुराद आपके वो डिफ़िकल्ट मॉड्यूल या ईजी मॉड्यूल नहीं है. वीक पॉइंट से मुराद ये है कि आपने अगर कोई एक पार्ट किया था तो उस पार्ट में आपने क्या ऐसी चीज़ थी जिसको आपको लगा कि ये डिफ़िकल्ट थी. क्या वो टाइमिंग थी जो आपसे मैनेज नहीं हो सकी? क्या वो आपकी वोकेबलरी थी जो आप समझते हैं कि इतनी ज़्यादा अच्छी वोकेबलरी नहीं थी आपके पास? क्या वो आपकी लिसनिंग का प्रॉब्लम था, क्योंकि आप बेसिकली पीछे से आप अपने पास्ट में इंग्लिश गाने, फिल्में, इंग्लिश लोगों से बातें ये नहीं थी, तो इसलिए आपको लगा कि लिसनिंग में प्रॉब्लम थी? क्या वो रीडिंग थी, क्योंकि आपका हो सकता है कि एकेडमिक बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, आपने मैट्रिक किया और आप नर्सिंग में आ गए. कोई इतनी ज़्यादा होते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स इतनी जिनका इतना अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं भी होता.
तो वो हर फील्ड में है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपनी आपने वीकनेस देखनी है कि आपकी वीकनेस बेसिकली है क्या थी। अगर आपको लगा कि आपके लिसनिंग में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो आपने देखना है कि लिसनिंग में किस पार्ट में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, ताकि आप अपने आप को असेस कर सकें कि आप पार्ट ए में वीक हैं, पार्ट बी में वीक हैं या पार्ट सी में वीक हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने आप को आपने हर लेवल से, हर जाविये से अपने आप को आपने असेस करना है, कौन सा मॉड्यूल डिफ़िकल्ट है, और जो मॉड्यूल डिफ़िकल्ट है उसमें कौन सी चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट है। और उसके बाद आपने ये देखना है कि आप एग्ज़ाम का स्ट्रेस था, क्या आपने वो फील किया जिसकी वजह से आप पैनिक हो गए और आपसे जो है वो हो नहीं सका, लेकिन आपको लगता था कि एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, अगर ये टाइम मैनेजमेंट ना होती तो शायद मैं कर लेता या कर लेती। ये सब चीज़ें जब आप एक एग्ज़ाम करेंगे, एक मॉक टेस्ट करेंगे, आप OET ऑफिशियल्स की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट्स हैं, ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे भी कुछ मिल जाएंगे, कुछ बैंक मार्क से भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आपके पास अगर मॉक टेस्ट पूरा बना हुआ नहीं है तो आपके पास मटेरियल तो होगा, आप उन मटेरियल में से अपने आप को खुद टाइम के हिसाब से, टाइम चला के साथ से उसकी प्रैक्टिस, उसको एक टेस्ट को करके देखें। एक लिसनिंग का, एक रीडिंग का, एक राइटिंग का और एक स्पीकिंग का टेस्ट जो है ना, उसी टाइम पैटर्न के अंदर आपने करना है। आपने खुद से नहीं करना कि ये एग्ज़ाम थोड़ी है कि मैं उसी टाइम के हिसाब से करूँ। नहीं, मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि आपने जो स्ट्रेस है एग्ज़ाम का उसको फील करना है। जब आप इन सारी चीज़ों को करेंगे तो आप खुद को असेस कर सकेंगे कि आपके ईच मॉड्यूल के अंदर आपके कितने जो है वो स्कोर आए। इस तरीके से आप खुद को असेस करेंगे और फिर अपने आप को आप रखेंगे कि मैं कितने पानी में हूँ और मुझे कितनी स्ट्रगल की ज़रूरत है। Going further, I'm going to tell you that you must aware कि आपका required score क्या है। क्या आपका required score B है, क्या आपका required score B प्लस है, C प्लस है, A है, whatever जो भी है, आपके required score हैं कितने। जितने आपके required score हैं वो एक तरफ, और दूसरी तरफ आपके वो स्कोर जो आपके फर्स्ट असेसमेंट में आपने खुद को दिए। अब आपने देखना ये है कि कितना डिफरेंस है, क्या उसमें 10 स्कोर्स का डिफरेंस है, 20 स्कोर्स का डिफरेंस है, 30 स्कोर्स का डिफरेंस है। उससे आप ये असेस कर सकेंगे कि आपको कितनी मेहनत की ज़रूरत है, कितना टाइम देने की ज़रूरत है आपको डेली बेसिस पे अपनी OET प्रिपरेशन को, और कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा इन ऑल 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स। आप अपने आप को असेस कर पाएंगे कि आपने कितना टाइम खुद को देना है इसकी तैयारी के लिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जाके आपने यू आर गोइंग टू बुक योर OET टेस्ट। नो, डोंट डू दैट। असेस योर सेल्फ फर्स्ट, बी कॉन्फिडेंट बिफोर appearing in the exam. After assessing yourself, already you know where you are standing in your journey of preparation for OET, what you are going to do. Now there is some specific instructions on OET to E2 language, OET officials websites, that how you are going to prepare your exam. एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले आप एग्ज़ाम को समझें कि एग्ज़ाम है क्या। असल में OET जो है वो ये, इसमें 4 मॉड्यूल्स हैं। टाइम मैनेजमेंट जो है उसकी बेसिक चीज़ है, उसके बाद आपकी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी या लैंग्वेज है वो इसमें जो रोल प्ले करने वाली है आपके लिए, जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगी। उसके बाद आपने देखना है कि 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स, हर मॉड्यूल्स को हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट ईच module. Let's discuss about the reading just to give you awareness that what is the meaning, that how you should know, that you must aware how to attempt every single part, every single module of OET exam. If I will talk about reading, so reading consists of 3 different parts: part A, part B and part C. Part A will be of 4 paragraphs and 4 different extracts. It could be of same topic or different topics, and you will have some question at the end of part A, and part A will be of 15 minutes. And in part A, in reading, this is one of the tips and tricks, that your spelling should not be wrong. Whatever you will read, you have to write it as it is in the answer. It should not be any addition, it should not be any subtraction in the answer. So this is one of the tips. This is what I mean by tips and tricks, that you must know how to attempt every single module of OET. And in the same way, the other modules are like listening and speaking. In speaking, if you have a community center, if you are in a hospital, whatever is your cue card, you have to keep in mind where you are. Are you in the hospital? Are you in the GP clinic? Are you in the community center? Self-assume that you are standing in the community center, and how you are going to deal with the patients, and what type of patients, and how you are going to help them. So keeping those things in the mind, you have to make your sentences, and you have to address your patient, and
shows empathy and compassion to them. There is one more thing that you can do. एक चीज़ और भी है जो आप लोग कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपनी एक you can make your OET टू डू चेकलिस्ट, एक OET टू डू चेकलिस्ट बनाएं, उसके ऊपर 1 बाय 1 चीज़ें लिखें जो आपको लगती हैं। जैसे आप उसके ऊपर लिखें कि आपको खुद को असेस करना है। सेकंड चीज़ ये लिखें कि जैसे आपके OET के रिक्वायर्ड स्कोर क्या है। थर्ड चीज़ अपनी वीकनेसेस लिखें, अपने प्लस पॉइंट्स लिखें, अपनी टाइम मैनेजमेंट के बारे में लिखें। फिर OET के मॉड्यूल्स लिखें, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, किस मॉड्यूल में आप कितने पानी में आप खुद को समझते हैं कि आपने असेसमेंट पे कितना लिया था, इसमें कितना टाइम देने की ज़रूरत है। सम पीपल आर आस्किंग मी हाउ वी कैन प्रिपेयर OET एट होम एंड हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्स एंड ऑन डेली बेसिस हाउ वी शुड schedule our things for the preparation of OET, how many hours on a daily basis we should give. From my perspective, I would not say that you have to give time for each module every day. Okay, once you will start preparing OET, you can do that in the first week of your preparation you can give time to each single module 30 minutes or 45 minutes, at least complete one module every day in the first week if you have time. But those who are already on the job, already they have some responsibility at the home, like I was having my family with me and I was also doing the job, so I was not able to give like 4 hours every day for doing one mock every day. It was not possible, frankly speaking. So to be honest, once you assess yourself, आप जान चुके हैं कि कहाँ पे आप वीक हैं, कौन से पार्ट्स में आप अच्छे हैं, जिन पार्ट्स पे आप बहुत अच्छे नहीं हैं उन पे आप फोकस करें और कोशिश करें कि उनको आप एटलीस्ट डेली टाइम दें अनटिल जब तक आप फील नहीं करते कि नाउ यू आर इम्प्रूव्ड, एटलीस्ट 10 to 20 मार्क्स आपके ऊपर हो जाएं, तब आप उनको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं उनके ऊपर। उसके बाद आप चारों मॉड्यूल्स को इकट्ठा लेकर चले, एटलीस्ट एक हफ्ता दोबारा से मॉक करके देखें और उसको कंपेयर करें अपने पुराने मॉक से और अपने लेटेस्ट मॉक के साथ। लेकिन डेली बेसिस पे आप ये कहें कि आप चारों मॉड्यूल को टाइम दें, आई डोंट थिंक सो इट इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ वेरी इजी। तो मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो लोग स्पेशली मैरिड लोग, जो लोग सिंगल लोग हैं और अभी सिर्फ जॉब कर रही हैं लड़कियाँ, या जो बच्चे या बच्चियाँ, या जो लोग अभी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जिनके ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो लोग कर सकते हैं कि डेली बेसिस पे आप लोग करें। लेकिन जो लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब भी कर रहे हैं, साथ घर भी देखना है, तो आप मुझे लॉजिकली कोई सेंस बनती नहीं है ना कि आप चारों मॉड्यूल्स को डेली बेसिस पे, आप उन मॉड्यूल्स को सिर्फ डेली बेसिस पे टाइम दें जिनमें आप वीक हैं, और जिनमें आप वीक नहीं हैं आप खुद का एक स्केड्यूल बनाएं कि मैंने हर 2 दिन के बाद इस मॉड्यूल को टाइम देना है या हर 3 दिन के बाद उस मॉड्यूल का टाइम देना है। जैसे मैंने स्पीकिंग की तैयारी बिल्कुल नहीं की जब तक मैं OET की प्रिपरेशन करती रही। OET का एग्ज़ाम देने से 1 हफ्ता पहले मैंने सिर्फ स्पीकिंग की प्रिपरेशन की। मैंने रीडिंग, I was aware that I was good at reading, so मैंने reading I was not giving a lot of time to my reading, so मैंने reading की preparation every other day you can say I was doing, but listening I was doing every day, at least I was giving 45 minutes to the listening part every day, and that was the most difficult part for me, to be honest. And writing I was also giving every day, at least I think in the first 3 weeks I was giving time to writing and listening, and after 3 weeks I just managed according to my second assessment for myself. तो आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। तो जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं OET की प्रिपरेशन, stay tuned with my series. I'm going to discuss all tips and tricks for you, and जो लोग इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम का आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ, आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को 1-on-1 सेशन भी चाहिए OET से रिलेटेड, OET की गाइडेंस से रिलेटेड, आप तो भी मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपका देखेंगे कि कहाँ पे आप वीक हैं, कहाँ पे नहीं है, अकॉर्डिंग टू माय ड्यूटी शिफ्ट्स और माय ऑफ मैं आपके साथ इंशाल्लाह कांटेक्ट में रहूँगी, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं। और मैं आपके साथ कुछ लिंक्स भी शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। OET ऑफिशियल्स का है, E2 लैंग्वेज का है, बेंचमार्क का है, सेट इंग्लिश का है, स्वॉश इंग्लिश का है। अच्छी अकेडमीज़ के ये लिंक्स हैं, आप इनसे भी जो है ना वो कोचिंग ले सकते हैं। लेकिन जो टॉप टिप है एट द एंड ऑफ द वीडियो, आई एम गोइंग टू क्लोज माई वीडियो विद दिस टॉप टिप: do not go to the coaching center preparation academies before preparing yourself at home at least 2 to 3 months. Do not be in hurry. बिल्कुल भी
फ़ौरन से किसी एकेडमी के साथ चले जाने की, वहाँ पे तैयारी करने की गलती मत कीजिएगा। अपने आप को टाइम दें, अंडरस्टैंड करें। ओईटी को 2 महीने, एटलीस्ट 2 महीने भरपूर टाइम दें खुद से पढ़कर। उसके बाद आप एंड पे जाएं एकेडमी में या किसी कोचिंग सेंटर में। उस टाइम पे जब आप रेडी हैं एग्ज़ाम देने के लिए, आपको लगता है कि नाउ आई एम एटलीस्ट 70% इम्प्रूव्ड एज़ कम्पेयर टू माई प्रीवियस असेसमेंट, जब आप ये समझ लें कि अब आप प्रिपेयर हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उस टाइम पे आपने एकेडमी को ज्वाइन करना है। और एकेडमी को ज्वाइन भी आप तक करें उस टाइम पे जैसे एग्ज़ाम देने से 45 डेज़ पहले, या एग्ज़ाम देने से 30 डेज़ पहले, या 2 माह पहले। इससे पहले एकेडमी ज्वाइन करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बिकॉज एकेडमीज़ जो है ना तो वो आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव करवाएंगी, ना वो आपकी जो है लिसनिंग पावर को इम्प्रूव करवा सकती हैं। एकेडमीज़ ना आपको टेंस मेकिंग बताएंगी, ना सेंटेंस उन्होंने बताना है, क्योंकि किंडरगार्टन के स्टूडेंट नहीं है ना हम लोग अडल्ट लर्निंग में हैं इस टाइम। ये सब चीज़ें आपको खुद करनी है। जब ये आप सब चीज़ें कर लें, उसके बाद आप एकेडमी पे जाएं। एकेडमी आपको सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगी, और टिप्स एंड ट्रिक्स उस वक्त तक इट्स नॉट हेल्पफुल until you are already good enough at all those things what I mentioned, that is vocabulary, sentence making, tenses, grammar, reading power, listening power. Improve it, work on those skills. उसके बाद एकेडमी में जाएं, ताकि जो वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं तो आप उनको कम्प्लीटली यूटिलाइज कर सकें और आप उसमें एग्ज़ाम को नॉकआउट कर दें एक ही बार। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट्स लिखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आप लोगों से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।